अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Inshallah, we will begin 56th session of Ar-Rahiq al-Maktoum, the Seal Nectar biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We'll continue. कल हम लोगों ने जो थर्सडे के दिन where we ended, Nabi sallallahu alaihi wasallam enters the sacred masjid and purifies it from idols. तो वहां पर हम लोगों ने end किया था. Inshallah, we will continue now. The messenger sallallahu alaihi wasallam prays in the Kaaba and delivers an address to the Quraysh. Accompanied by Usama and Bilal radiallahu anhuma, he entered the sacred hall to face the wall opposite the door where he offered prayer and went around acclaiming Allah's greatness and oneness. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा रदियल्लाहु अन्हु और बिलाल रदियल्लाहु अन्हु के साथ एंटर किए सेक्रेड हॉल में और he faced the wall opposite to the door where he offered the prayer और फिर he was going around acclaiming Allah's greatness and oneness. Shortly afterwards, he returned to the doorway and standing upon its elevated step, gazed in gratitude on the huge number of people below and delivered the following celebrated address. उसके बाद वो डोरवे पे आए, वहां पर खड़े हुए एलिवेटेड स्टेप पर और फिर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लुकिंग एट अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जो कि यानी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत प्लीज हो गए देख करके एक ह्यूज तादाद में मुस्लिम वहां पर मौजूद थे. And he delivered this address. There is no God but Allah alone. He has no associates. He made good on his promise that he made to his servant to help him, and it is he alone who defeated all the confederates. Bear in mind that every claim of privilege, whether that of blood or property, is under my heel, except that of the custody of Kaaba and supplying of water to the pilgrims. Bear in mind that for anyone who is slain, even though semi-intentional, with the club or a whip, for him the blood money is very severe. 100 camels, 40 of them to be pregnant. पहले अल्लाह की हम्द सना की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फिर उनको कहा कि उनके साथ कोई शरीक नहीं है और ये कि अल्लाह ताला ने अपना वादा जो है वो निभाया और मदद की, टाइम दर टाइम मदद की. सारा जो प्रिविलेज है या ब्लड या प्रॉपर्टी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हील के नीचे. I mean, it is just an expression to express that it is now under his control, except the custody of Kaaba and supplying of water to the pilgrims. उसके बाद वो कहते हैं कि अगर कोई भी कत्ल हुआ है, even though half intention से भी या किसी क्लब से या किसी चाबुक से, for him the blood money जो है वो बहुत severe है. 100 camels और 40 of them is to be pregnant, यानी डबल उसका गिनती हो जाएगी ना if the camel is pregnant. O people of Quraysh, surely Allah has abolished from you all pride of the pre-Islamic era and all pride in your ancestry. All men are descended from Adam and Adam was made from dust. अभी वो सारे कुरैश को एड्रेस कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर से सारी जो अना थी, तकब्बुर जो था, जो जाहिलिया पीरियड में था, वो सब निकाल दिए. वो घमंड जो तुम्हारे बाप दादाओं में से था उसको भी हटा दिया गया और सारे के सारे जो इंसान है वो आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और आदम अलैहिस्सलाम किससे बनाए गए थे? डस्ट से. फिर उन्होंने एक कुरानिक वर्स रिसाइट की सूरा 49 वर्स नंबर 13 से. O mankind, we have created you from a male and a female and made you into nations and tribes that you may know one another. Verily, the most honorable of you near Allah is that believer who has at-taqwa. That is one of the muttaqun. That is pious and righteous persons who fear Allah, much abstain from all kinds of sins and evil deeds which He has forbidden, and love Allah much, perform all kinds of good deeds which He has ordained. Verily, Allah is all knowing, all aware. वो सारे इंसानों को यानी अल्लाह ताला इज रेफरिंग टू ऑल मैनकाइंड कि हमने आपको मेल और फीमेल से क्रिएट किया, फिर आप लोग जो है नेशंस, ट्राइब्स, कुंबा वगैरह में आपके हिस्से हो गए, आप एक दूसरे को जानते हो, लेकिन अल्लाह के पास कौन करीब है? जो मुत्तकी है, जो गुनाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं गुनाह करने के लिए, और जो मना है उसके पास नहीं जाते. और अल्लाह क्या चीज को पसंद करते, क्या चीज उनके लिए बहुत बिलवड है, हर चीज
जो अच्छे अमाल हैं वो उनको बिलावड है। एंड अल्लाह अलीम है, खबीर है, सब चीज़ों को जानता है। O you people of Quraysh, what do you think of the treatment that I am about to accord to you? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि आप लोगों के साथ में क्या मामला करूंगा। They replied, O noble brother and son of a noble brother, we expect nothing but goodness from you. वो लोग कहते हैं कि तुम नोबल हो, नोबल ब्रदर हो हमारे, और बेटे हो एक नोबल ब्रदर के, तो तुमसे हम सिर्फ खैर ही एक्सपेक्ट करते हैं। उस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आई स्पीक टू यू इन द सेम वर्ड्स एज यूसुफ स्पोक टू हिज ब्रदर, नो रिप्रोच ऑन यू दिस डे, गो योर वे फॉर यू आर फ्रीड वंस। तो उन्होंने कहा मैं वही वर्ड्स यूज करता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के ऊपर यूज किया था कि आपके ऊपर आज कुछ भी नहीं है, नो रिप्रोच। ये कुरानिक वर्स 92 है सूरह 12 से, नो रिप्रोच ऑन यू दिस डे, गो योर वे फॉर यू आर फ्रीड वंस। यानी आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती कोई भी नहीं है, हमारा जबर, आप जो है फ्री हो, आप अपने रास्ते जाओ। As for the doorkeeping of the Kaaba, it remained with Uthman bin Talha, and the responsibility of supplying water to the pilgrims remained with Al-Abbas radiallahu anhu. तो जो काबा की चाबी है वो उन्हीं के पास थी जिनके पास ओरिजिनली थी, उस्मान बिन तलहा। और जो पानी देने की जो ड्यूटी थी, जो पिलग्रिम्स आते हैं उनके लिए किसके हाथ में है वो, अल अब्बास रदियल्लाहु अन्हु। बिलाल रदियल्लाहु अन्हु calls the adhan at the Kaaba. When the time for prayer approached, Bilal radiallahu anhu ascended the Kaaba and called for the prayer. Abu Sufyan bin Harb, Atab bin Asid, and Al Harith bin Hisham were meanwhile sitting in the yard, and Atab bin Asid commented on the new situation by saying that Allah honored Asid, his father, for not having to hear such words. The Prophet, approached and assisted by divine revelation, told them that he had learned about what they had spoken of. Al-Harith and Attab, taken by incredible surprise, immediately professed Islam and bore witness to the messengership of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adding that we swear by Allah that none had been with us to inform you. अभी बिलाल रदियल्लाहु अन्हु जो है वो अजान देने के लिए काबा की तरफ ऊंची जगह पे चढ़े और उन्होंने अजान देना शुरू किया। ये अजान की आवाज सुनते ही अबू सुफियान बिन हर्ब, अताब बिन असद और अल हारिथ बिन हिशाम जो थे वो आगे बैठे हुए थे यार्ड में। तो उन्होंने कहा, अताब बिन असद कहता है कि अल्लाह ताला ने मेरे फादर आसिद उनको जो है ऑनर किया क्योंकि उनको ये कलिमात सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अप्रोच किया, उस वक्त उनके साथ कोई भी नहीं था, वो आदमियों के साथ कोई नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए उनको बता दिया था कि ये लोगों ने इस तरीके की बातें की हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, उनको कहा अल हारिस और अताब को कि मुझे अल्लाह ताला ने बता दिया आप लोगों ने क्या बातें की हैं। ये कहना था कि वो लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और फिर उसके बाद उन लोगों ने कसम भी खाई कि वी स्वेर वल्लाही हम जब ये बात कर रहे थे तब हमारे पास कोई भी नहीं था। यानी उनके लिए ये प्रूफ काफी था और अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दे दी। अनदर एग्जाम्पल फॉर अस टू सी कि हम कभी भी जजमेंटल नहीं हो सकते, कभी भी कहीं भी अल्लाह ताला किसी के भी हिदायत का इंतजाम कर सकते हैं। The Prophet ﷺ prays a victory prayer or a prayer of gratitude. On that very day, the Prophet entered Hani's house where he watched and offered prayer of victory. Hani had sheltered two Makkan relatives of hers in her house for which she was granted support by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अभी एक हानी है, उनके घर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर हुए जहां पर उन्होंने वुदू किया और फिर 2 रकात जो है अपनी विक्ट्री की, अपनी जीत की उन्होंने पढ़ी। हानी वो हैं जिन्होंने अपने 2 मक्कन रिलेटिव को अपने घर में प्रोटेक्शन दिया था और उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सपोर्ट किया करते थे। Shedding the blood of the worst criminals. Shedding blood of 9 of the worst criminals was declared lawful even under the curtains of Kaaba. Some of them were later pardoned. Abdul Uzza bin Khattal was found holding on to the curtain of Kaaba and was killed. Abdullah bin Abu Sarah had become a Muslim and emigrated, but later left Islam and killed some of the companions. The other man who was put to death was Miqyas bin Sahaba. He was a Muslim whose brother Hisham was accidentally killed by a helper accidentally. The Prophet had arranged the payment of blood money to him, which he had accepted. His revengeful nature, however, was not satisfied. So he killed the helper and went to Makkah as an apostate. Also killed were Huwairis and a woman singer. अभी कुछ चंद लोग थे जो वर्स्ट क्रिमिनल्स थे और उनका जो है कत्ल कर दिया गया था। वो कौन थे? तकरीबन 9 ऐसे वर्स्ट क्रिमिनल्स थे जिनको कत्ल करने का हुक्म था। हत्ता कि वो
काबा के विसिनिटी में थे और काबा के कर्टन को पकड़े हुए थे। मसलन अब्दुल उज़्ज़ा बिन खताल को कत्ल कर दिया गया था, उसने काबा का कर्टन पकड़ा हुआ था। अब्दुल्ला बिन अबू सारा जो कि मुसलमान बन के हिजरत कर गए थे, बट लेटर ऑन फिर वो मुर्तद होके कुछ सहाबाज को उन्होंने कत्ल किया, तो इसलिए उनको भी मारने का हुक्म हुआ। दूसरा जिसकी डेथ हुई या जिसका कत्ल हुआ वो था मिक्यास बिन सहाबा। वो मुस्लिम था और उनका जो भाई है वो एक्सीडेंटली एक अंसार के हाथों किल हो गया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेमेंट ऑफ ब्लड मनी अरेंज कर दिया था, जो उसने एक्सेप्ट कर लिया। मगर उसका नेचर जो था वो बड़ा बदले वाला था, रिवेंजफुल था। तो वो जो था मुतमईन नहीं था, तो उसने वो अंसार का कत्ल किया, मक्का में आ गया और मुर्तद हो गया। उसके बाद हुवैरिस और एक वुमन सिंगर, इनको भी कत्ल करने का हुक्म हुआ। On the other hand, every attempt was made to grant pardon to the people. Ikrimah bin Abu Jahl, who had attacked Khalid's detachment at the time of the entry into Makkah, was forgiven. To Wahshi, the murderer of Hamza, radiallahu anhu, the Prophet's uncle, and to Hind, who had chewed his liver and also extended his was also extended his generous mercy. अभी किन लोगों के साथ रहम का मामला हुआ था? इक्रिमा बिन अबू जहल, जिन्होंने खालिद के डिटैचमेंट को अटैक किया था मक्का में एंट्री करने के वक्त, उनको फॉरगिवनेस दे दी गई थी। वहशी जो मर्डर था हमजा रदियल्लाहु अन्हु का, और हिंद जो अबू सुफियान की वाइफ थी जिन्होंने उनका कलेजा च्यू किया था, उन सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया था। The same generous treatment was accorded to Habar, who had attacked the Prophet's daughter with a spear so grievously that she ultimately died of the fatal injuries while on her way from Makkah to Medina. फिर एक जो हबार था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, उनको इतनी बुरी तरह से स्पीयर से मारा था कि वो अल्टीमेटली उसी इंजरीज की वजह से फौत हो गई थी, तो उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया था। अब आप सोचें, औलाद के ऑलमोस्ट एक कातिल को माफ करना, इट इज नॉट एन इजी टास्क, बट सुभान अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड दैट। अपने प्यारे चचा के कातिल को इतना बुरी तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट किया जिन्होंने, वहशी और हिंद, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ कर दिया। Safwan bin Umayyah accepts Islam. In the same context of nobility peculiar to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, two chiefs of Quraysh were pardoned once they had embraced Islam. They were Safwan bin Umayyah and Fudala bin Umair. The latter had attempted to assassinate the Prophet while he was circumambulating in the holy sanctuary. यानी ये जो चीफ थे कुरैश के, और इन लोगों ने बहुत खुराफातें की थी, जिसमें से फुदैला बिन उमैर जो था उसने कोशिश की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला घुटने की जब वो तवाफ कर रहे थे। The Prophet's matchless tolerance and broad-mindedness, instigated by his mission as a mercy to all people, converted a terrible hypocrite into a faithful, devoted believer. लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सब्र था, जो उनके अंदर ब्रॉड-माइंडेडनेस थी, उसके वजह से उनका जो एक मिशन जैसे था कि मर्सी टू ऑल मैनकाइंड, सब लोगों के साथ रहम का मामला जो करने वाली उनकी एटीट्यूड थी, उसने एक टेरिबल मुनाफिक को एक बेहतरीन डिवोटेड मुस्लिम मोमिन में कन्वर्ट कर दिया। The Prophet ﷺ addresses the people on the second day. अब दूसरे दिन नबी ﷺ क्या एड्रेस करते हैं लोगों को? On the second day of the great conquest, the Prophet stood up and addressed the people in matters relating to the sacred status of Makkah. After entertaining Allah's praise, he proclaimed that Makkah was a holy land and would remain so until the day of judgment. No bloodshed was involved therein. Should anyone take the liberty of fighting within Makkah on grounds derived from the events that characterized the conquest, he should remember that it had been a license granted temporarily to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and not for others. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेकेंड डे उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, अल्लाह की हम्दो सना ऑफ कोर्स एज यूजुअल, और फिर बता रहे हैं कि जो मक्का है वो किस तरीके की हुर्मत वाली जगह है, और यौमुल आखिरा तक वो इसी तरीके से हुर्मत वाली जगह बनी रहेगी। यहाँ पर कोई खून खराबा होना पॉसिबल नहीं है, और अगर कोई मक्के की जमीन पर लड़ने के लिए आए या कोई इवेंट को कैरेक्टराइज करे, तो उसने ये बात समझ लेना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक टेम्पररी ग्रांट दिया गया था, ये परमानेंट फीचर नहीं है, ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही महदूद एक परमिशन थी जो कुछ टाइम के लिए दी गई थी फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, लेकिन ये और आम लोगों को परमिसिबिलिटी नहीं देती कि वो मक्का की विसिनिटी के अंदर कोई खून खराबा करे। In one narration, he said it is not allowed to uproot its shrubs or to cut its trees or to chase or disturb its game or to pick up the fallen things except by a person who would announce that what has been found publicly. एक और एक नरेशन में आता है कि यहाँ पर बिल्कुल अलाउड ही नहीं है कि आप कोई झाड़, कोई छोटे से फूल पत्ती तोड़ें या अपरूट करें, यानी कोई नेचर की चीज को कोई आप डिस्टर्ब करें या डिस्ट्रॉय करें, कोई गिरी हुई चीज हो आपको मिले तो माल कोई,
तो आप उसको उठाएं, अनलेस कोई आदमी जो है किसी को कुछ मिली और वो पब्लिकली अनाउंस करता है तो वो बात और है. Al-Abbas radhiyallahu anhu said, O Allah's messenger, accept the lemongrass, for it is used by our goldsmiths and for our homes. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, accept the lemongrass. अभी lemongrass एक वो ऐसी herb है जिसे हम लोग कहते हैं ना कि चाय में डालते हैं फ्रेग्रेंस के लिए, तो अब वो भी एक ग्रास हर्ब्स शर्ब्स ही है ना. तो उन्होंने पूछा अल अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने कि क्या हम लेमन ग्रास निकाल सकते हैं. उन्होंने कहा एक्सेप्ट लेमन ग्रास, नो प्रॉब्लम, लेमन ग्रास के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं. In this context, out of the spirit of revenge, the tribesmen of Khuzaha killed a man from the tribe of Laith. Here the Prophet was annoyed and ordered Khuzaha to stop those pre-Islamic practices. Additionally, he gave the family of anyone killed the right to consider either of the two options, blood money or just retribution. In one narration, a man from Yemen named Abu Shah stood and said, have it written down for me, O Messenger of Allah. So the Prophet said, write it for Abu Shah. अब दो कुंबे हैं जिनके बीच में थोड़ी सी रिवेंजफुल वाली हरकतें चल रही थी, जिसका नाम खुजाहा एंड ट्राइब ऑफ लैथ था. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहाँ पर थोड़ा सा अनॉय हो गए, क्योंकि फिर से वो दौरे जहालियत वाली एक्टिविटीज को तूल नहीं देनी है. फिर उन्होंने एक और एक रूल बनाया था कि अगर किसी के घर वाले का कत्ल हो जाता है तो दूसरों उनको घर वालों को हक है ब्लड मनी लेने का. दो रास्ते थे, ब्लड मनी लेने का या जस्ट किसी तरीके का रेट्रीब्यूशन ले. और दूसरे नरेशन में आता है कि एक आदमी जो था अबू शाह फ्रॉम यमन, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये जो भी है रूलिंग्स या जो है वो मुझे लिखा हुआ चाहिए. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि लिख लिया जाए. So that was about the second day address. The helper feared the Prophet sallallahu alaihi wasallam might stay in Makkah. अभी अंसार जो थे उनको थोड़ा सा वो फियर आने लगा कि हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मक्का में ही रुक जाएं. After having delivered his address, the Prophet rode to a small hill, Safa, not far from the Kaaba, turning his face towards the sacred house amidst a vast, admiring, and devotional multitude. He raised his hand in a passionate prayer to Allah Azza wa Jal. The citizens of Medina who had gathered around him feared that since Allah had given him victory over his native city, he might choose to stay there. He insisted on an explanation of their fear, and so they spoke openly. He immediately dismissed their fears and assured them that he had lived with them and would die with them. अब जैसे मदीनियंस जो थे, अंसार जो थे, उनको ये फीलिंग आ रही थी कि शायद ये अपने नेटिव लैंड को भी फतह कर चुके हैं, काबा की सेंचुरी है उनके पास, सारा कुछ है, तो ये शायद अब यहीं रहेंगे. तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सफ़ा के पास, माउंटेन सफ़ा के पास जाके खड़े हुए और किबले की तरफ रुख किया हुआ है और बड़े अच्छे पुरसुकून होके हाथ उठा के अल्लाह से दुआ कर रहे थे. तो मदीना के जो लोग थे अंसार वो गैदर हुए उनके पास और उन्होंने अपनी एक्सप्रेस किया फीलिंग कि उन्हें ये खौफ आ रहा है कि शायद वो अपनी नेटिव सिटी में रह जाएं. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही अश्योर किया था कि वो उनके साथ रहेंगे एंड उनके साथ मरेंगे. सो ही अश्योर्ड देम दैट ही विल स्टे विद देम एंड ही वुड डाई विद देम. Then what happened? The helpers, उनको थोड़ी तसल्ली हो गई. Taking the pledge. Immediately after the great conquest, the Makkans came to realize that the only way to success lay in the avenue of Islam. They complied with the new realities and gathered to pledge loyalty to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अभी मक्कन्स जो हैं, जो बचे कुचे हैं, उनको ये बात का पता था कि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है, तो सिर्फ दीन इस्लाम के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं है. The first men came to pledge full obedience in all areas they can afford. Then the women followed the men's example. आदमी पहले आए, उन्होंने आके अपनी ओपननेस दिखाया and एक्सेप्ट किया इस्लाम. फिर उसके बाद औरतें आई. The Prophet sallallahu alaihi wasallam with Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu received the pledge of loyalty and communicated to them on his behalf. Hind bin Utbah, Abu Sufyan's wife, came disguised in a group of women, lest the Prophet recognize and take her into account for chewing the liver of Hamza radhiyallahu anhu, his uncle. औरतों के बीच में जो ग्रुप में हिंद भी आई
ताकि वो पहचानी ना जाए, तो वो थोड़ा छुप छुपाते हुए आई और उसने भी जो है प्लेज लिया, यानी सबने जो है बैत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और किसके साथ, उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के साथ. The Prophet accepted their allegiance on condition that they should associate none with Allah, to which they immediately agreed. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको स्ट्रेस किया कि वो शिरक नहीं करेंगे अल्लाह के साथ, और उन लोगों ने immediately agree भी किया. He added that they should not practice theft. Here Hind complained that her husband Abu Sufyan was tight-fisted. उन्होंने फिर एक और एक बात कही कि चोरी जो है वो नहीं होगी बिल्कुल भी किसी भी टाइप की. तो इस पे हिंद ने कंप्लेन किया कि अबू सुफियान जो है वो थोड़ा टाइट फिस्टेड है, यानी वो पैसे खर्च नहीं करता. Her husband interrupted, granting all his worldly possessions to her. The Prophet laughed and recognized the woman. She requested him to extend his pardon to her and forgive all her previous sins. अभी क्या हुआ कि जैसे उन्होंने कंप्लेन की हिंद ने कि मेरा हस्बैंड जो है वो थोड़ा पैसे खर्च करने में टाइट है हाथ उसका, तो नबी उनके हस्बैंड जो है वो बीच में इंटरप्ट किए और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ये हिंद है. फिर वो सामने खुलकर आई और उसने अपनी माफी मांगी, तलब की कि मेरे सारे पिछले जो सिंस है उसको माफ कर दिए जाएं. Some other conditions were imposed, including the prohibition of adultery, killing of infants, and fabricating falsehood. और भी चंद चीजें हैं जिसको फोरबिडन बनाया गया था, मसलन जिना करना, छोटे जो बच्चे हैं या लड़कियों का जो लोग कत्ल करते थे इन्फेंट्स का, उस पर पाबंदी लगाई गई. एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्सहुड, झूठ मनगढ़ंत चीजें क्रिएट करना. To all these orders, Hind replied positively, swearing that she would not have come to take an oath of allegiance if she still maintained the least seed of obedience to him. वो कहती है कि यानी उसे कसम खाई कि उसने जो है इसलिए वो इधर आई बैत करने के लिए कि क्योंकि उसके दिल में थोड़ा सा भी एक कहते हैं ना सीड बराबर भी डिसोबीडियंस नहीं है अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर. वो बिल्कुल पूरी अताअत करने के लिए तैयार है. On returning home, she broke her idol, admitting her delusion over gods made of stone. घर आकर उसने अपनी जो बुत थे उसको तोड़ा और फिर कन्फेस किया कि उसका ये जो है गफलत में थी और स्टोन के गॉड्स को वो पूज रही थी. Allah's messenger stayed in Makkah for 19 days. 19 दिन वो मक्का में रुके. During that period, he taught the people about Islam and guided them to piety. He ordered Abu Usaid al-Khuzay to fix the pillars of the sacred area, send missions to all quarters, inviting them to adopt Islam, and broke the idols that remain in the surrounding areas of Makkah. अब ये 19 दिन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दीन इस्लाम सिखाया, उन लोगों को हिदायत दी कि तकवा कैसे गेन किया जा सकता है. फिर उन्होंने अबू उसैद अल खुजा को कहा कि पिलर्स जो हैं सेक्रेड एरिया के उसको फिक्स करे, और फिर आसपास के इलाकों में भी इन दावा का काम शुरू हुआ. उन्होंने मूर्तियां जो आसपास के इलाके में थी मक्का के उसे भी तोड़ी. He told them, whoever believes in Allah and the hereafter should not leave any idol in his house without breaking it. उन्होंने हुक्म दिया कि अगर जो अल्लाह में बिलीव करता है, आखिरा में बिलीव करता है, तो अपने घर में किसी भी मूर्तियों को नहीं छोड़ देंगे. सब मूर्तियों को उन्होंने कहा घरों में अपनी अपनी तोड़ दो, डिस्ट्रॉय कर दो. Dispatching platoons. Shortly after the Great Conquest, the Prophet began to dispatch platoons and missions aimed at eliminating the last symbols of pre-Islamic practices. अभी उन्होंने छोटी छोटी आर्मी बटालियंस बना के डिफरेंट एरियाज में भेजना शुरू किया. फॉर व्हाट? ताकि जो थोड़ी बहुत भी दौरे जालियत की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको कैसे डिसकंटिन्यू किया जाए. So in Ramadan, 8th after Hijri, he sent Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu to an area called Nakhla, where there was a goddess called Al-Uzza who was venerated by the tribes of Quraysh and Kinana. Around 8 after Hijri, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन अल-वलीद रदियल्लाहु अन्हु को एक एरिया में भेजा जिसका नाम था नखला. वहां पर एक मूर्ति थी किसकी? अल-उज़्ज़ा की, जो कुरैश और किनाना बहुत उसकी हुर्मत रखते थे और उसकी पूजा करते थे. Its custodians were from Bani Shaiban. Khalid radiallahu anhu at the head of 30 horsemen arrived at the spot and destroyed it. अब उसकी इंचार्ज कौन थे? बनी शैबान. खालिद रदियल्लाहु अन्हु अपने 30 आदमियों के साथ, घोड़सवारों के साथ आए, उस स्पॉट पे उसको डिस्ट्रॉय किया. On his return, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked him if he had seen anything there, to which Khalid radiallahu anhu gave a negative answer. Here he was told that it had not been destroyed and he had to go there again and fulfill the task. He went back again and saw a naked black woman with wild hair. Khalid radiallahu anhu struck her with his sword and cut her into 2 parts. He returned and narrated the story to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who then confirmed the fulfillment of the task. अब खालिद रदियल्लाहु अन्हु पहली बार तो लौट के आए, तो
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपको वहां पर कुछ दिखा? उस पे खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो उन्होंने कहा मैंने सब डिस्ट्रॉय कर दिया। बट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप वापस दोबारा जाओ, टास्क जो है वो पूरा नहीं हुआ। जब वो दोबारा गए तो उनको क्या दिखा वहां पर? एक काली बिना कपड़ों की औरत, उसके बाल पूरे बिखरे हुए। खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने उसको अपनी सोर्ड से कट करके दो पार्ट में टुकड़े कर दिया और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके नरेट किया और कंफर्म किया कि अब जाके उनका जो टास्क है वो कंप्लीट हुआ। नंबर 2, in the same month, Amr bin al-As radiallahu anhu was sent on a mission to destroy another idol called Suwa. सेम मंथ में ही अमर बिन अलास रदियल्लाहु अन्हु को भेजा गया और एक दूसरी मूर्ति जिसका नाम सुआ था उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इसका ख्याल कौन रखते थे? हुदैल। इट वॉज इन एन एरिया दैट वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम मक्का। 3 किलोमीटर की दूरी पे था मक्का पे। On a question posed by the doorkeeper, Amr radiallahu anhu said that he had been ordered by the Prophet to knock down the idol. The man warned Amr radiallahu anhu that he would not be able to do it. Amr radiallahu anhu was surprised to see someone who was still in ignorance. So he approached the idol and destroyed it. He then broke the casket that was beside it, but found nothing. The man immediately embraced Islam. अभी अमर रदियल्लाहु अन्हु जो थे वहां पर पहुंचे और वो मूर्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो उधर एक आदमी था जिसने वार्निंग दी कि ये आप जो है ये मूर्ति को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। तो अमर रदियल्लाहु अन्हु बहुत सरप्राइज हुए। उन्होंने कहा ये कौन से दौरे जालियत की आप बातें कर रहे हो? उन्होंने वो मूर्ति के पास गए, सुवा के पास, और उसको इमीडिएटली डिस्ट्रॉय किया। और उसके पास एक कैस्केट भी था, उसको भी डिस्ट्रॉय किया। उसके अंदर भी कुछ भी नहीं था तो उसको भी तोड़ दिया। आदमी ने जो वहां पर खड़ा था और वार्निंग दे रहा था अमर रदियल्लाहु अन्हु को, उसको पता चल गया कि ये कुछ भी नहीं है, ये मूर्तियों के पीछे, ये सिर्फ एक स्टोन है, मड है, डस्ट है। तो उसने इमीडिएटली दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। तीसरा किस्सा, साद बिन जैद अल अशअली रदियल्लाहु अन्हु इन द सेम मंथ वाज सेंट ऑन अ सिमिलर मिशन टू अल मुशलाल। अभी साद बिन जैद अल अशलाली रदियल्लाहु अन्हु सेम मंथ में भेजे गए थे सिमिलर मिशन पे अल मुशलाल में कि वो वहां पर मनात नाम के आइडल को डिस्ट्रॉय करें, जिसको औस और खजरज ट्राइब बहुत मानते थे। Here too a black naked woman with messy hair appeared wailing and beating on her chest. Saad radiallahu anhu immediately killed her, destroyed the idol and the casket and returned to the conclusion of his mission. जैसे ही वो उधर पहुंचे उन्हें वैसी ही काली बिना कपड़ों की औरत जिसके बाल ऐसे बिखरे हुए थे दिखी, रोती हुई और अपनी छाती पीटती हुई। साद रदियल्लाहु अन्हु ने इमीडिएटली उसको कत्ल किया, आइडल को डिस्ट्रॉय किया और कैस्केट जो पास था उसको भी डिस्ट्रॉय किया और लौट आए मिशन अपना कंप्लीट करके। चौथा, Khalid bin al-Walid radiallahu anhu, at the head of 350 cavalrymen from the helpers, immigrants and Bani Sulaim, was dispatched in 8th after Hijri to the locality of the Bedoons of Bani Jadhima to invite them to Islam. अभी खालिद बिन अल-वलीद तकरीबन रदियल्लाहु अन्हु 300 आदमी के साथ और 50 कैवलरीमैन जो थे, जो अंसार और मुहाजिर के मिक्स थे और बनी सुलैम भी थे, उनके साथ पहुंचे बेदून की लोकेलिटी में जो बनी जादिमा में है, उनको इस्लाम के लिए इस्लाम की दावत देने के लिए। He was instructed to carry out his mission with peace and goodwill. यहाँ पर कोई खून खराबा का इरादा नहीं था, बिल्कुल सुकून से और आराम से उनको दावा देना था। The people were not articulate enough to communicate their intentions, so because of the miscommunication, Khalid ordered his men to kill them and take the others as captives. He also had the intention to kill the captives, but some of the companions opposed his plan. अभी वो लोग जो थे वो थोड़े जाहिल किस्म के थे, उनके साथ कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो रहा था। उनकी नीयत क्या है और क्या मसले हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से मिसकम्युनिकेशन की वजह से खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि इनको कत्ल कर दो और जो बचेंगे उनको बंदी बना लो। उनका इरादा बंदियों को भी कत्ल करने का था, लेकिन सहाबाज ने अपोज किया उनके प्लान को। When news of the bloodshed reached the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was deeply grieved and raised his hands towards the heavens, uttering these words: "O Allah, I am innocent of what Khalid has done." अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ऐसा खून खराबा हुआ है, in spite of he giving them the instruction not to do it. तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा दुखी हुए, उन्होंने अपने हाथ रेस किए और अल्लाह से दुआ किया कि ओ अल्लाह, मैं जो है बरी जिम्मा हूँ, मैं इनोसेंट हूँ कि खालिद ने क्या किया। He immediately sent Ali radiallahu anhu to make reparation to the tribes who had been wronged. After a careful inquiry, Ali paid the blood money to all those who suffered loss. अब अली रदियल्लाहु अन्हु जो है उन्होंने इंक्वायरी की
और फिर उसके बाद ब्लड मनी जो है ना वो पे किया जिन जिन के घर वालों की जान का नुकसान हुआ. The remaining portion was also distributed among the members of the tribe in order to alleviate their suffering. बाकी का भी जो बचा पैसा था वो भी उनके कुंबे के लोगों के अंदर बांटा गया क्योंकि उनका जो नुकसान हुआ उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरना चाह रहे थे. Khalid radiallahu anhu, due to his unreasonable behavior, had a dispute with Abdurrahman bin Auf radiallahu anhu. Hearing this, the Prophet became angry and ordered Khalid radiallahu anhu to stop the dispute, adding that his companions, meaning Abdurrahman bin Auf radiallahu anhu, were too high in rank to be involved in such arguments. अभी खालिद रदियल्लाहु अन्हु जो है वो अनरीजनेबल बिहेवियर करते हुए उन्होंने अब्दुल रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु के साथ आर्ग्यूमेंट करना शुरू किया. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में पता चला तो वो गुस्सा हुए और उन्होंने खालिद रदियल्लाहु अन्हु को स्टॉप किया और उनको कहा कि अब्दुल रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु जो है वो बहुत हाई स्टेटस के हैं सहाबा और उनके साथ ये पेटी आर्ग्यूमेंट्स करना सही नहीं है. We are on 536, Samina. You're asking the page number. We are on 536. That is the story of the conquest of Makkah and the decisive battle that eliminated paganism from there once and for all. तो ये है कहानी हमारे मक्का जो फतेह करने की जो कॉन्क्वेस्ट था और डिसाइसिव बैटल जहां पर ये बुत परस्ती वगैरह को हमेशा के लिए once and for all उखेड़ दिया गया था. The other tribes in the Arabian Peninsula waited and watched closely the final outcome of the bitter struggle between the Muslims and the idolaters, already convinced that the holy sanctuary would not fall in the hands of the righteous party. दूसरी जो कुंबे थे अरेबियन पेनिनसुला के पास वो बड़े ताक लगाकर बैठे थे और वेट कर रहे थे कि फाइनली इनका क्या होगा, कुरैश और मुस्लिम्स का, यानी मुस्लिम्स और मुस्लिम्स के बीच में क्या होगा. और उनको पूरी उम्मीद थी कि काबा जो है वो मुसलमानों के हाथ में नहीं आएगा. It had been a conviction deeply established in their minds ever since the elephant army of Abraha al-Ashram advanced from Yemen intending to destroy the sacred house 60 years ago. यानी उनको ये पता था कि अब्राहा 60 साल पहले आया था तो कुछ भी नहीं हुआ था यमन से जब आया था वो, तो आई एम श्योर अभी भी ये मक्का ये जो मदीने से आ रहे हैं मुस्लिम्स ये भी कुछ भी नहीं कर सकते मक्कन्स का. और ये तकरीबन जो अब्राहा का किस्सा है वो 60 इयर्स पहले हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के टाइम पे. The Treaty of Al-Hudaybiyah was a natural prelude to this great victory in which the people believed deeply and over which people talked a lot. The Muslims in Makkah who had feared to declare their faith openly began to appear and work enthusiastically for this new approach of life. अब Treaty of Hudaybiyah जो है वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी जिस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा यकीन किया था और बहुत सारी बातें चल रही थी. मुस्लिम्स के मक्का जो है वो उन्होंने अपना खौफ हटा के ओपनली डिक्लेयर किया अपना फेथ और बहुत एंथुजियास्टिकली काम करने लगे. नए जोश और उमंग के साथ वो अपनी न्यू लाइफ को जीने लगे. People began to convert into Islam in large numbers in the Muslim army that numbered only 3,000 in the previous battle now reached 10,000. Muslims जो है अपनी दीन इस्लाम को फॉलो करने के लिए बड़ा अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और बड़ा खुश थे कि जहां पहले स्टार्टिंग में 300 थे सिर्फ आर्मी, आज 10,000 हो गई थी मुस्लिम आर्मी. In fact, this decisive change provided people with a keen insight to perceive things and the world around them as a whole in a different perspective. The Muslims were then to control all the political and religious affairs in Arabia. यानी ये जो चेंज था उसने लोगों को एक अलग नजरिए से दुनिया की चीजों को देखने का मौका दिया. मुस्लिम्स जो थे अभी सारे कंट्रोल कर रहे थे पॉलिटिकल और रिलीजियस अफेयर अरबिया के. उन्होंने दीन इस्लाम के मजहब के लिहाज से और वर्ल्डली पावर के लिहाज से दोनों तरीके से हुकूमत जो है अपनी स्टैब्लिश कर दी थी. The whole post-Hudaybiyah phase had been well furnished in favor of the new Islamic movement. Streams of desert Bedouins began to pour in painful homage to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, embracing the new faith and carrying it to the various areas for propagation. हुदैबिया की ट्रीटी के बाद का जो फेज था वो बहुत जबरदस्त था और बहुत फायदेमंद रहा. बुदूस जो है हर जगह से दीन इस्लाम में शामिल होने लगे, एक्सेप्ट करने लगे और अलग अलग एरिया में जाके उसको फैलाने भी लगे. The third stage, अब हम पहुंच गए हैं फाइनल थर्ड स्टेज पर. The third and the final stage in the life of the Messenger sallallahu alaihi wasallam embodied the fruitful results of his call to Islam, which was the result of a long period of struggles in the way of Allah Azza wa Jal and included troubles, struggles, disturbances, trials and many bloody conflicts and battle that lasted for over 20 years. यानी हमने देखा कि अब ये जो लास्ट स्टेज है ये दीन इस्लाम को फैलाने का कॉल टू अल्लाह का जो मिशन है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का,
ये तकरीबन 20 साल का स्ट्रगल था जिसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस, बहुत सारी आजमाइशें, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारी जंग, बहुत सारा ब्लड, बहुत कुछ हुआ ये 20 साल के अंदर. The conquest of Makkah was considered as the greatest advantage achieved by Muslims in those years. ये जो फतेह मक्का का जो किस्सा है ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट रहा है मुस्लिम्स का. It had a profound effect on the subsequent course of events and consequently altered the entire life of the Arabs. यानी ये जो चीजें थी इसने पूरी तरह से हिस्ट्री जो बदल दी थी और पूरी शक्ल जो है अरब पेनिनसुला का बदल दिया था. It was a decisive distinction between pre-quest and post-quest periods. यानी बहुत डिफरेंट और क्लियरली प्री मक्का फतेह और पोस्ट मक्का फतेह की हमें डिस्टिंक्शन मिलती है, फर्क मिलता है. For the Quraysh at that time were considered by the Arabs as defenders and helpers of Arabs. Other Arabs are only their subordinates. कुरैश का ऐसा था कि they were considered as the defenders, यानी वो डिफेंड करते थे, प्रोटेक्ट करते थे और हेल्प करते थे अरब्स की. और जो दूसरे जो अरब्स थे ना वो सिर्फ उनके यानी कुरैश के सबऑर्डिनेट्स थे, यानी उनके थोड़ा अंडर थे. The surrender of Quraysh was therefore considered as the final elimination of paganism in the Arabian Peninsula. अभी जो इन्होंने सबमिट कर लिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने हथियार डाल दिया कुरैश ने, तो इसकी मानी ये है कि कंप्लीटली इनका जो पेगनिज्म, जो आइडोलेट्री है वो खत्म हो गई, अरेबियन पेनिनसुला से एटलीस्ट उधेड़ दी गई है. This stage can be divided into two phases. Number 1, struggles and fighting, and number 2, tribes and people racing to embrace Islam. अब इस स्टेज को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं. एक तो वो स्ट्रगल और फाइटिंग जो होती है, दूसरा ट्राइब और लोग रेस कर रहे हैं दीन इस्लाम को कबूल करने के लिए. Being so close, rather inseparable, the two phases of the stage intervene in such a way that an event of one phase occurs during the progress of the other. यानी ये दोनों जो स्टेज हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कि एक फेज खत्म होता है और दूसरा जो है शुरू होता है. यानी जो स्ट्रगल्स एंड फाइटिंग खत्म हुई और उसके बाद धड़ाधड़ लोग जो है दीन इस्लाम में दाखिल होने लगे. तो ये वन फॉलो द अदर वाला कंटिन्यूटी वाला स्टेजेस हैं. However, we have preferred for literary purposes to deal with these two phases separately. The fighting phase was given priority due to the fact that most of the events that occurred there were earlier than those in the other category. लेकिन हमें इसको समझने के लिए ये दोनों स्टेजेस को अलग अलग डील करना पड़ेगा. और ये जो पहला वाला जो था द फाइटिंग फेज, उसको प्रायोरिटी दी गई थी क्योंकि इसी के बाद जो है फिर वो दूसरा वाला सब्सिक्वेंट इफेक्ट था. The Battle of Hunain. The conquest of Makkah astonished both the Arabs and the others, who began to realize that they were destined to accept the new situation as an unalterable fact. मक्का फतेह के बाद अरब्स और दूसरे जो थे वो उन्होंने बिलीव करना शुरू कर दिया था कि ये जो नई सिचुएशन है, ये जो राइज ऑफ इस्लामिक नेशन है, इसको कोई ऑल्टर नहीं कर सकता. This is an unalterable fact. ये होना है ये अल्लाह की तरफ से. However, some of the fierce and proud powerful tribes did not accept and instead chose to continue hostility. अब कुछ जो लोग थे उनको क्या गलत फहमी थी कि वो जो है फोरफ्रंट पे रहेंगे और इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अब इसके ये काम के अंदर कौन थे आगे? हवाजिन और साकिफ, Nazar, Jusham, and Saad bin Bakr, and people of Bani Hilal, all of whom were from Qais, Aylan, believed that they were superior to admit or surrender to such a victory. अब इनके अंदर अपनी अना है, अपना घमंड है, अपना तकब्बुर है. और ये लोग क्या कहते हैं? हवाजिन साकिफ के लोग, नसर यानी उसके कुंबे के हैं ये लोग, नसर, जुशाम और साद बिन बकर और बनी हिलाल के लोग जो कैस ऐलान से थे. वो लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत बड़े हैं, बहुत सुपीरियर है, हम सबमिट नहीं कर सकते. भले ये बड़ा फतेह मक्का फतेह है बट हम सबमिट नहीं कर सकते. They went to Malik bin Auf al-Nasri and made up their mind to fight against the Muslims. वो अपने लीडर के पास गए मालिक बिन औफ अल-नसरी और उनसे कहा कि अब हम जंग करेंगे. The enemies march and the encampment at Autas. When the leader Malik bin Auf decided to march out and fight against the Muslims, he made his countrymen take their wealth, women and children,
with them to Autas, a valley situated in the lands of Hawazin near Hunain and is adjacent to Zul Majaz, which is around 10 miles from Makkah in the direction of Arafat. अभी इनका जो लीडर था मलिक बिन औफ डिसाइड किया मार्च करने के लिए अगेंस्ट मुस्लिम्स, और उसने अपने कंट्री के माल और औरतें और बच्चों को लिया और अवतास एक वैली में जाकर रहे जो हवाजन हुनैन के करीब है, नियर ऑपोजिट टू जुल मजाज, जो कि सिर्फ 10 माइल की दूरी पर है मक्का से आरफात के डायरेक्शन में. The war veteran disputes the leader's judgment. As soon as they camped in Autas, the people crowded Malik. The old and sane Duraid bin al-Sima, who was well known to be experienced in war, was among those who gathered around Malik. He asked, "What valley are we in?" They said, "In Autas." "What a good course it is for horses. It is neither a sharp, pointed height nor a plain or loose soil." अब एक बूढ़ा और बहुत समझदार दुरैद बिन सिमा था, उसका बहुत एक्सपीरियंस था वॉर का, तो वो मलिक के पास आया और उससे पूछा हम कौन से वैली में हैं. उन्होंने कहा हम अवतास में हैं. उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी जमीन है घोड़ों के लिए, ना तो ज्यादा शार्प पॉइंटी है हाइट पे है, ना तो बहुत प्लेन या लूज सॉइल है. What? Why do I hear camels growling, the donkeys braying, the children's crying, and the sheep bleating? Asked Duraid. They said, Malik bin Auf has made his people bring their women, properties, and children with them. तो वो पूछता है कि ये क्या है, मुझे कैमल के ग्राउलिंग की आवाज आ रही है, डोंकी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, बच्चे रो रहे हैं, शीप की आवाज आ रही है, ये सब क्या है? तो किसी ने उनसे कहा कि मालिक बिन औफ ने अपनी औरतें बच्चों को और प्रॉपर्टी को साथ में लेकर आए. So he called Malik and asked him, what made him do such a thing? Malik said that his aim was to have everybody's family and property around them so that they would fight fiercely to protect them. तो मालिक कहता है कि मैंने, कहता है आपने ऐसा क्यों किया, इन सबको क्यों लाए? वो कहता है मैंने सबकी फैमिली और प्रॉपर्टी को साथ लाया हूं ताकि वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी तरह से जंग करें. उस पर उसने क्या कहा दुरैद बिन असिमा ने? वो कहता है वल्लाही तुम कुछ भी नहीं हो बल्कि सिर्फ एक शेपर्ड हो. Answered Duraid, do you believe that there is anything that can stand in the way of a defeated person or stop him from fleeing? वो कहते हैं तुमको इस चीज का अंदाजा है कि कोई भी चीज एक हारे हुए पर्सन को या एक भगोड़े को रोक सकती है, ये चीजें रोक सकती है. If you win the battle, you avail nothing but a man with the sword and the spear. But if you lose, you will bring disgrace on your people and property. वो कहते हैं अगर आप जीत जाते हो, ठीक है, if you win the battle, you avail nothing but a man with the sword and a spear. यानी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आदमी जिसके हाथ में तलवार और एक वो है स्पीयर है, भाला है. कहते हैं लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम अपने सारे लोगों के सामने और ये प्रॉपर्टी और इन लोगों को भी बेइज्जत करते हो. Then he resumed his talk and went on wondering about some families and their leaders. फिर उन्होंने कंटिन्यू की अपनी बात और वो वंडर कर रहे थे ये चंद फैमिलीज और लीडर्स को लेकर. O Malik, thrusting the distinguished people of Hawazin into the battlefield will avail you nothing. Raise them up to where they can be safe. Then make the young people mount their horses and fight. If you win, those whom you placed in the rear will follow you. But if you lose, it will only be a loss of a battle, and your kinsmen, people, and properties would not be lost. वो कहता है मलिक, तुमने जिन जिन लोगों को हवाजिन के लोगों को इधर बैटलफील्ड में खींचा है, तुम इनको जो है एक सेफ जगह पे ऊपर रेस कर दो और यंग जो है तादाद है उनको कहो कि हॉर्सेस पे अपने बैठे और फाइट करें. अगर तुम जीत जाते हो, जो पीछे वाले लोग हैं वो तुमको फॉलो करेंगे, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारे जो लोग हैं, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे लोग, प्रॉपर्टी जो है वो खराब नहीं होंगे. But Malik refused his suggestion. By Allah, he said, I will not do such a thing. You must have grown senile. Hawazin have to obey me, or else I will lean my body against this sword so that it penetrates through my back. मलिक जो है उसने उनका जो है सजेशन को रिजेक्ट कर दिया. वो कहता है मैं ये चीज वल्लाही मैं ये चीज नहीं करूंगा. वो कहता है तुम थोड़े बूढ़े हो गए हो. हवाजिन हैव टू ओबे मी. हवाजिन के जो लोग हैं उन्होंने मेरी बात सुननी है, और अगर वो मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं ये सोर्ड के ऊपर अपनी बॉडी जो है दबाऊंगा और फिर अपने आप को कत्ल कर दूंगा, यानी अपने आप को सोर्ड के ऊपर प्रेस करके वो पीछे से पेनिट्रेट होके बाहर निकल जाएगी, मतलब ही विल कमिट
So he will kill himself. He rejected any sort of advice from Duraids concerning that matter. His people said, "We obey you." Duraid consequently said, "Today is the day that I have not missed, but I will surely not be tempted to witness." कहते हैं, दुरैद कहते हैं कि आज का दिन जो है मैंने मिस नहीं किया, बट मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस खुराफत का शाहिद ना बनूं. Enemy spies. The spies that Malik dispatched to spy on the Muslim forces returned with their limbs cut off. "Woe unto you! What happened to you?" said Malik. They said, "We have seen distinguished people on spotted horseback. We could not do anything before. What you see happened to us." जिन मलिक ने स्पाइस भेजे थे उनके लिम्स कटे हुए थे, और वो जैसे ही आए तो मलिक उनको वो टू ये यानी बुरे अल्फाजों में वेलकम करने लगा और पूछने लगा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? उन्होंने कहा, हमने डिस्टिंग्विश पीपल देखे हॉर्सबैक पर, जाने माने, बट हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते. देखा आपने हमारे साथ मामला क्या हुआ है. Spies of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. News about the enemy march was conveyed to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. So he sent Abu Hadrat al-Aslami, ordering him to mix with people and stay with them so that he can receive information from them and convey it to Allah's Messenger. That was exactly what he managed to do. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हजरत अल-अस्लामी रदियल्लाहु अन्हु को भेजा और कहा कि लोगों के साथ मिक्स हो जाओ, इंफॉर्मेशन हासिल करो और मुझ तक पहुंचाओ. और वही एग्जैक्टली काम उन्होंने किया. हजरत अल-अस्लामी ने वही काम किया. अभी हुनैन का जो है वो किस्सा है, इंशाल्लाह आई थिंक वी विल टेक इट टुमारो, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल में है, तो हम लोग उसको इंशाल्लाह कर लेंगे. कोई सवाल है? अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज यू कैन आस्क पर्टेनिंग टू आवर सब्जेक्ट और ऑफ भी चलेगा. अच्छा, इन द लास्ट लेक्चर ना एक मैं जो एक्सप्लेन कर रही थी ना आपको कुछ एक पॉइंट, उसके अंदर आई हैड मेंशन कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि अपनी स्टिक को स्ट्राइक करो और फिर वो रिवर नाइल जो है वो फट गई थी. तो दैट वाज मूसा अलैहिस्सलाम. बाय मिस्टेक आई सेड नूह अलैहिस्सलाम एंड नोबडी पॉइंटेड मी. सुभान अल्लाह. आप लोगों का फोकस किधर है? यू शुड हैव पॉइंटेड इट आउट. ये तो अच्छा हुआ इत्तेफाक से आई वाज जस्ट लिसनिंग फॉर सम दिस थिंग एंड देन आई केम अक्रॉस. और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ग्रुप में डाली हैं इन रिगार्ड्स टू द क्वेश्चंस दैट आई कीप गेटिंग एंड जो हमारा की डिस्कशन हो रहे होते हैं, तो प्लीज़ उसको ज़रा रीड कर लिया करें क्योंकि उसमें बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस होती है. सो डोंट मिस ऑन दैट. एनी क्वेश्चन? इफ नॉट देन आई विल क्लोज इट. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.